સ્વર ગુર્જરીમાં હું નંદિની ત્રિવેદી અને આજે આપણી સાથે છે અવંતી પટેલ. અવંતી પટેલને તમે ઇન્ડિયન આઇડલમાં જોઈ જ હશે. ટોપ 9માં એમણે પ્રેઝન્ટ કર્યું હતું અને બહુ જ સુંદર ગાય છે. ગઝલ, ઠુમરી, સેમી ક્લાસિકલ ફિલ્મ સોંગ્સ પણ ગાય છે અને એમણે આઈ થિંક ઝેવિયર્સ કોલેજમાંથી ગ્રેજ્યુએટ કર્યું છે. એ આપણા વિદુષી અશ્વિની રિતેશ પાંડેજીના શિષ્યા રહી ચૂક્યા છે અને શી ઇઝ સ્ટીલ લર્નિંગ. શી ઇઝ અ કમ્પોઝર અને સિંગર તો છે જ એન્ડ શી રાઇટ્સ પોએમ ઓલ્સો અને એ પોતે કમ્પોઝ પણ કરે છે. સો મેં એમનો એક શો જોયો હતો ઓ ગાને વાલી મુંબઈના ઓપેરા હાઉસમાં અને ઇટ વોઝ અ વન્ડરફુલ શો. ત્યારથી હું એમના પ્રેમમાં પડી ગઈ છું. ઇન્ડિયન આઇડલમાં તો એમણે બહુ જ સરસ ગાયું હતું પણ એ બહુ જ યુનિક શો છે. તમને ક્યારેક પણ ચાન્સ મળે કોઈ પણ સિટીમાં તો યુ કેન ગો ફોર દેટ. અને એ ઓ ગાને વાલી કોન્સેપ્ટ મેં જે સાંભળ્યો અને જોયો એ પછી મને એમ થયું કે આઈ શુડ મીટ હર. એ પોતે એમના મધર મહારાષ્ટ્રીયન છે, ફાધર ગુજરાતી છે એટલે અમે પણ મુંબઈની ભેલપુરી ભાષામાં જ વાત કરીશું. થોડું હિન્દી, થોડું ગુજરાતી, મરાઠી નહીં કરીશું. નો પ્રોબ્લેમ. ભલે એ ગુજરાતી મરાઠી બહેનો કહેવાય બટ વી વિલ ટોક ઇન ગુજરાતી એન્ડ હિન્દી મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ. સો અવંતી, પહેલાં તો અમારા દર્શકોને થોડોક તમારો અવાજ સંભળાવો. તમને ગમતું કોઈ પણ ગીતથી આપણે શરૂઆત કરીએ. તો તમે ઇન્ડિયન આઇડલની વાત કરી. સો ઇન્ડિયન આઇડલમાં મારું ઓડિશનનું જે સોંગ હતું ભરે નૈના, ઓહ વાવ, that is a song I would like to sing. બહુ જ મારું બહુ ફેમસ ગીત છે અને બહુ જ ફેવરિટ પણ છે. પ્લીઝ સિંગ. क्यों न बोले मुझसे मोहन, क्यों है रूठे रूठे मोहन यूं, कैसे मनाऊं हाय रे कैसे मनाऊं, उन बिन कटे न रहना, उन बिन आवे न एक पल चैना, उन बिन जीऊं तो कैसे मैं जीऊं हाय, बहे नैना भरे मोरे नैना झरे मोरे नैना, मोहे नैना सुन नहीं कहना, बहे मोरे नैना, बहे नैना भरे मोरे नैना, भरे मोरे नैना, मोहे नैना सुन नहीं कहना, बहे मोरे नैना. आहा, बहुत खूब. थैंक यू ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सुनने के वक्त. बहुत सुंदर गाया और ये गाने का ऑर्केस्ट्रेशन भी बहुत सुंदर है. सो लेट अस स्टार्ट अबाउट योर जर्नी. તમારી મ્યુઝિકલ જર્ની કેવી રહી? તમે યુ કેન સ્પીક ઇન હિન્દી. થેન્ક યુ. તો ગુજરાતી ઘરમાં વાત કરતા હતા when I was small. હવે પ્રેક્ટિસ થોડી ઓછી થઈ ગઈ છે, સો આઈ વિલ બી યુઝિંગ હાઇબ્રિડ લેંગ્વેજ. નો પ્રોબ્લેમ. તો મ્યુઝિકલ જર્નીની વાત કરવી હોય તો આઈ સ્ટાર્ટેડ યંગ when I was 5 years old. અને મારા પેરેન્ટ્સ both of them are doctors, બે डॉक्टर्स છે. और मेरी जो मॉम है वो गाती थी पहले एज अ चाइल्ड. तो उनके फैमिली में म्यूजिक है पहले से. या बीइंग अ महाराष्ट्रियन, हाँ, इट इज क्वाइट नेचुरल. काफी म्यूजिक से रिलेटेड फैमिली. तो उन्होंने शायद सुना होगा बचपन में कि मैं गा सकती हूँ. तो मैं जस्ट 5 साल की हुई और तब उन्होंने मुझे म्यूजिक क्लास में डाल दिया. और तब मैंने वर्षा भाभी जो दादर में रहती हैं उनके साथ स्टार्ट किया. एंड उनके साथ मैं ऑलमोस्ट 23 इयर्स तक सीखती रही. एंड दैट इज हाउ माय म्यूजिकल जर्नी बेसिकली स्टार्टेड विद माय पेरेंट्स. पर आपको भी वो अच्छा लगता था कि यू वांटेड टू बिकम समथिंग? आई थिंक व्हेन यू आर सो यंग, 5 વર્ષની ઉંમરમાં you can't decide. સમજમાં તો નથી આવતું. But you must be enjoying. Definitely. Okay. And then you went to Ashwini Tai. तो अश्विनी ताई के यहाँ मेरा 2019 में स्टार्ट हुआ. काफ़ी रिसेंट है. एंड सिंस देन आई हैव बीन लर्निंग फ्रॉम अश्विनी. That's so nice. Okay, તમારી ઇન્ડિયન આઇડલની અને સારેગામાપામાં પણ આઈ થિંક લિટલ ચેમ્પિયન હતા. તો એ એક્સપિરિયન્સ કેવો રહ્યો? તો લિટલ ચેમ્પ્સની પહેલાં વાત કરશું બિકોઝ આઈ વોઝ વેરી યંગ.
लिटिल चॅम्प्स I know. तो मराठी लिटिल चॅम्प्स नाव હતું 2008 નું જે સિઝન થયું હતું એ એકચ્યુઅલી મરાઠી લિટિલ ચેમ્પ્સનું ફર્સ્ટ સિઝન હતું Okay. અને આઈ વુડ સે કે ઇટ વોઝ લાઈક અ ક્રેશ કોર્સ Okay. કેમ કે યુ આર ઇન સ્કૂલનું બધું વર્કલોડ તો હોય જ છે, એક્ઝામ્સ છે, બધી વસ્તુ તમને સાથે રાખીને યુ હેવ ટુ ડુ ધીસ શો. Yeah. તો લકીલી યંગ એજમાં યુ નો આપણે કરી શકીએ બધું. હા. So I think age was my biggest advantage. Okay. કે at that age you are like a sponge. Very good. તમને જે કંઈ આપે you absorb. Okay. So that season 8 મહિનાનું season હતું. Okay. બહુ લાંબુ season Yeah, હતું yeah. Mm-hmm. અને એ ટેલિવિઝનમાં શું થાય કે ટીઆરપી જે રીતે વધે લોકો રિન્યુ કરતા જાય વધારતા જાય તો એ રીતના અમારું બી season વધતું ગયું અને આઈ થિંક ઇટ વોઝ અ ગ્રેટ એક્સપિરિયન્સ ટુ લર્ન સો મચ. Okay. અને ઇન્ડિયન આઇડલ? Indian Idol was a little later in Okay. life. I had finished my college. I was done with my graduation. Okay. And Indian Idol was ऐसे कह सकते हैं कि उसका स्केल ही अलग था. Yeah. तो ये एक नेशनल लेवल का रियलिटी शो था जहाँ बॉलीवुड के लोग भी इन्वॉल्व है, जहाँ नेटवर्क बड़ा है और उससे रिलेटेड भी लर्निंग्स बहुत ही अलग थी. तो वहाँ मेंटोर्स सिखाते रहते थे ना? मेंटर्स तो रहते ही है, हम्म. लेकिन यूजुअली क्या होता है लोगों को लगता है कि यू नो अभी हो गया रियलिटी शो में आ गए तो अभी स्टार्ट हो गया. Yeah. लेकिन दैट रियलिटी शो एक्चुअली टीचेस यू कि ऐसा नहीं है, यहाँ से अभी आपको मेहनत स्टार्ट करनी है. तो इंडियन आइडल का लर्निंग अलग था. ओके, तो હવે આપણે ઓ ગાને વાલેની વાત કરીએ. एस आई टोल्ड यू आई लव दैट शो. तो उसके बारे में बताइए कि ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में कैसे आया? तो पैंडेमिक का टाइम था. हाँ. और सारे आर्टिस्ट बैठे थे घर पे. क्या करना है, कैसे करना है, अपना आर्ट आगे कैसे लेके जाना है, ये मुझे लगता है आर्टिस्ट के लिए बहुत ही बड़ा सवाल था. लकीली उस टाइम पे एक स्टूडियो ने ग्रांट अनाउंस किया था कि नए कॉन्सेप्ट्स नए शोज़ के लिए. तो ये जो ठुमरी गज़ल ये जो जॉनरा है वो मुझे बहुत पसंद था पहले से. और मैं जब छोटी थी तभी से मैं शोभा जी, शोभा भुट्टू, बेगम अख्तर इन सब आर्टिस्ट के गाने सुनते ही बड़े हुए. Okay. तो मैंने सोचा कि मुझे ये जो फॉर्म है ये बहुत पसंद है, तो इसके साथ कुछ कर सकते हैं, इसका एक शो बना सकते हैं. तो मैंने बहुत ही कहते हैं ना ऑन अ विम उसी एटीट्यूड से एक मैंने प्रपोजल बनाया और मैंने अप्लाई किया कि मेरे दिमाग में ऐसा ऐसा है. और उन्होंने कहा था कि इट डजंट हैव टू बी अ रेडी शो, इट कैन जस्ट बी एन आइडिया. Okay. So I really just submitted an idea. Wow. And luckily, thankfully, they approached me saying कि we like your idea, let's do something. Okay. तो उसके बाद मैंने फिर 1 महीने के अंदर मुझे एक शो बनाकर उनको देना पड़ा. Oh wow. और वहाँ पे भी आई थिंक इंडियन आइडल और सारेगामापा की जो ट्रेनिंग है कि फटाफट सब करना है वो काम आई. Very good. और हमने ये शो पहली बार किया ऑनलाइन. Okay. तो वो पहली बार ऑनलाइन शो के तौर पर लोगों के सामने आया. और फिर उसके बाद एक पूरा साल हमने कुछ नहीं किया क्योंकि कोई कुछ नहीं कर रहा था. तो वो पूरा साल एक्चुअली मैं कहूँगी बहुत ही इसेंशियल रहा इस शो के जर्नी में, क्योंकि वो पूरे साल में मैंने बहुत पढ़ाई की. Okay. मैंने बहुत रिसर्च किया. You got enough time to do this. एग्जैक्टली. तो जो शो का कहते हैं डिजर्व्ड प्रिपेयर्डनेस रिसर्च था वो मैंने वो पूरे साल में बैठ के किया. और फिर 4 मार्च 2022 में पहली बार ये शो हमने NCPA एक्सपेरिमेंटल थिएटर में प्रेजेंट किया था. Oh, very nice. आपके साथ और भी एक जी संबंधी है. तो मेरी गुरु बहन है ऋतुजा लाड, Okay. जो भी अश्विनी जी की स्टूडेंट है. अच्छा. Okay. तो जब मैंने शो के बारे में सोचा तो मैं सोच रही थी कि और कोई भी होना चाहिए जो कॉम्प्लीमेंट करे मेरे स्टाइल को लेकिन अपना कुछ एक लेके आए इस शो में. तो मैंने बहुत सोचा क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं
बट ऋतुजा इज सच अ यूनिक आर्टिस्ट. मुझे लगा कि इट विल बी अ नाइस चेंज फ्रॉम माय वॉइस बट वी विल स्टिल बी एबल टू डिलीवर समथिंग टुगेदर. So that is how Rutuja came on board. And फिर बाकी तो जो हमारी टीम है, wonderful artists, we are associated with so many artists. And you know, काफ़ी लोग पूछते हैं कि आपकी टीम बहुत अच्छी है. I think उसका पूरा क्रेडिट मैं उनको देना चाहूँगी क्योंकि सब लोग को आर्ट बहुत पसंद है. तो इवन तो हमारी एक प्राइमरी टीम है जिसमें अक्षय जादव है, प्लेज द तबला, नुसरत अपूर्व है, यंग बॉय है, प्लेज द हारमोनियम, फिर संदीप मिश्रा है जो सारंगी के साथ वनराज भी था ना शायद. करेक्ट. तो हम ऐसा अप्रोच रखते हैं कि जितने आर्टिस्ट के साथ एसोसिएट हो पाए. सो अगर एक आर्टिस्ट की डेट नहीं है तो इमीडिएटली वी हैव 2-3 अदर पीपल दैट वी वुड लव टू परफॉर्म विद. एंड वी ट्राई आवर बेस्ट कि एक कम्युनिटी एफर्ट हो. तो हम ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ जुड़े हैं. वनराज इज वन ऑफ देम. फारूक जी है जो भी सारंगी पे हम हमारे साथ कर चुके हैं. तो ये जो गाने वाली उनको हम तवायफ कहते थे पहले के ज़माने में. तो उनमें से सिलेक्शन आपने कैसे किया? तो ये बहुत कठिन सवाल है. अच्छा. क्योंकि जैसे मैंने बताया कि रिसर्च का टाइम गया, उसमें मुझे पता चला कि कितनी कहानियां हैं, कितना इसमें क्या कहते हैं रिसर्च हिस्ट्री है कि क्या रखें और क्या एलिमिनेट करें. ये सबसे बड़ा सवाल था हमारे लिए. और शो का फॉर्मेट भी ऐसा है कि 90 मिनट्स के अंदर 1 आवर 30 मिनट्स ये मैक्सिमम ड्यूरेशन मुझे रखना था क्योंकि हम सब जानते हैं आज की जनरेशन को पकड़ के अटेंशन स्पैन ये मुश्किल चीज़ हो गई. तो हमने बहुत कोशिश की कि एक डाइवर्स रेंज ऑफ आर्टिस्ट, स्टोरीज एंड हिस्ट्री, इन सारी चीज़ों को हम साथ लाके शो बना पाए. लेकिन इसमें और एक अच्छी चीज़ ऐसी हुई कि हम शो बदलते रहते हैं. तो आपने शायद जो शो देखा और अगर आप आज फिर से देखेंगे तो आपको इसमें कुछ चेंज मिलेगा फॉर श्योर. अच्छा. तो दैट्स हाउ वी कीप यूजिंग ऑल द रिसर्च दैट वी हैव डन. वेरी नाइस. पर ये जो मैंने पहले बताया कि ये सेक्स वर्कर जो है और गाने वाली है, उसमें डिफरेंस क्या आपने देखा? एज यू टोल्ड कि हिस्टोरिकल कहानी है तो व्हाट इज द डिफरेंस? क्योंकि कई लोगों को एक ही लगता है. करेक्ट. तो जो तवाइफ्स थी वो एक्चुअली एंटरटेनर्स थी और उनके अपने पेट्रन्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स हुआ करते थे. उस ज़माने में उसे निकाह कहते थे, लाइक मैरिज. ओके. एंड उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ करता था कि दिस इज द पेट्रन एंड दिस वुमन विल बी contractually married to this patron for a number of years, months, stipulated duration. और उस ड्यूरेशन में it was fully like a marriage. They would only be exclusively with the patron. And उसमें कई बार ऐसा होता था कि उन्हें परफॉर्म करने का चांस मिलता था, नहीं मिलता था आउटसाइड ऑफ द पेट्रन. और पेट्रन्स कौन होते थे? राजा महाराजाओं के बेटे, बहुत रिच मर्चेंट्स, जमींदार. तो बहुत ही एफ्लुएंट क्लास, सोसाइटी के एफ्लुएंट क्लास. उनके सामने ही उनको गाना रहता था. तो कुछ ऐसे सिचुएशंस होते थे कि अगर सपोज महाराजा के बेटे हैं और वो एक गांव से गुजर रहे हैं और वो वहाँ रहने वाले हैं 2 महीने के लिए. तो देन द तवाइफ वाज सपोज टू एंटरटेन हिम एंड हिज गेस्ट्स. तो उनके जो सारे गेस्ट हुआ करते थे वो उनके लिए परफॉर्म करते थे. एंड अनफॉर्चुनेटली उस ज़माने में ब्रिटिश भी आए थे तो उन्हें ये न्यूआंस, ये जो बारीकी है वो उन्हें समझ में नहीं आई. तो उन्होंने लीगली इतना ट्रिकी सिचुएशन बना दिया कि जो सेक्स वर्कर्स थी और जो तवाइफ्स थी उनको एक कैटेगरी में क्लब कर दिया गया. That's why ये which is why the confusion and misconception. पर मैंने बताया कि आपको कौन से गाने वाली का सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और आप थोड़ा सा कुछ सुना सको तो. बिल्कुल. तो ये तो मुश्किल सवाल है. आई नो एक किसी क्योंकि आपने बहुत अच्छे को चूज किया है बट फिर भी. तो आई थिंक हमारी ऑडियंस को शायद जो पता हो ऐसे एक म्यूजिशियन का मैं आपको सुनाती हूँ. बेगम अख्तरी बाई.
उनकी एक मैं गज़ल छोटी सी झलक सुनाती बिल्कुल। हूँ। यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती थी, हाँ यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती थी, आज कुछ बात है, आज कुछ बात है जो शाम पे रोना आया है, मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया, ए मोहब्बत। वाह, क्या बात है। थैंक यू। अब आपकी क्लासिकल ट्रेनिंग के बारे में हम बात करेंगे। आपके गुरु से आपने क्या तालीम हासिल की, और आपका जॉनरे जो है ठुमरी, तो उसमें वो हेल्प करते हैं या आप प्योर क्लासिकल सीखते हैं? जस्ट एक्सप्रेस। सो मेरा जो क्लासिकल म्यूज़िक की जो जर्नी है वो कह सकते हैं मेरी पहली गुरु वर्षा भावे उनसे शुरू हुई, ओके। और मैंने उनके साथ ही मैंने विशारद और एमए म्यूज़िक ये दोनों तभी कंप्लीट किया हुआ था ऑलरेडी। अश्विनी ताई के साथ मैं जुड़ी तभी जस्ट पैंडेमिक शुरू हुआ था, एंड लकीली अश्विनी ताई इज सच आई थिंक अ फिनोमिनल एज एन आर्टिस्ट कि उनके पास सब है, सारे जॉनर्स का नॉलेज, बहुत ही वो एकेडमिकली इंक्लाइंड है, जो मुझे लगता है मेरे लिए क्या कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जैसे था। तो उनसे तालीम जब लेने जाते हैं तो ऑफ कोर्स जयपुर अतरौली घराने की तालीम तो है ही, वो मेन है उनका, लेकिन उनकी जो आंट थी, मौसी थी सरला भिड़े, शी यूज्ड टू लर्न फ्रॉम शोभा गुड्डू। ओके। तो उनके पास सरला ताई का सिखाया वो बहुत कुछ है, अरे वाह। और वहाँ से ठुमरी की भी तालीम मुझे ताई से मिलती है, और ठुमरी दादरा ये फॉर्म के जो न्यूआंसेस है या उसे समझने का जो एस्थेटिक समझने का एक सेंस है, वो आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट अश्विनी ताई इज गिविंग दैट टू मी। ओके, दैट्स नाइस। तो मतलब हर कुछ चीज़ें मिल जाती है, बंदिश भी है, ख्याल भी, मतलब प्योर क्लासिकल का भी रहता है ना, एब्सोल्युटली, और साइड बाय साइड एक ठुमरी और करेक्ट। और वो उनको कबीर भजन बहुत पसंद है, उनके खुद के कंपोज बहुत सारी भजन है, मीरा भजन बहुत सारी हैं। उनकी 2 किताबें भी है शायद बंदिशों के ऊपर। करेक्ट, राग रचनांजलि नाम से उनकी खुद की रची हुई कंपोज की हुई बंदिशें हैं, उसकी बुक्स हैं। तो आई थिंक प्रोलिफिक कंपोजर आर्टिस्ट वो भी गुरु के तौर पे मिले तो बहुत अच्छी बात है। इट्स अ ब्लेसिंग्स, फुल्ली अ ब्लेसिंग, वेरी ग्रेटफुल। ओके, बट अपार्ट फ्रॉम गजल एंड ठुमरी और कौन सा संगीत का प्रकार आपको पसंद है? तो आई थिंक आई हैव बीन लकी, क्योंकि मैंने जैसे रियलिटी शोज के थ्रू भी एक अलग जॉनरा ऑफ म्यूजिक एक्सप्लोर किया, तो आई लाइक अ लॉट ऑफ म्यूजिक। Yeah, okay. And I would say कि I'm comfortable singing a lot of music. तो जैसे folk music के forms हैं, मराठी में लावणी है, ये मुझे बहुत पसंद था, अभी भी है, I love singing है। वेस्टर्न टाइप के जो गाने हैं, जैज टाइप के गाने हैं, वो भी मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, सो इट्स हार्ड टू से हर टाइप का म्यूजिक आप सुनती हो। बट टेल मी अबाउट योर कवर सॉन्ग्स। यस, क्योंकि वो तो बिल्कुल अलग है इनसे जो आप सीखती हो या गाती हो।
सो टेल मी अबाउट दैट, कौन से हैं आपके कवर सॉन्ग्स? सो कवर सॉन्ग्स ये होते हैं जो मतलब गाए हुए हैं लोगों ने, लेकिन आप अपने ढंग से अलग तरीके से उसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यूट्यूब के मेरे चैनल पे मैंने ऐसे एक बॉलीवुड जैज़ सीरीज़ रिलीज़ की है। उस पे बहुत ही पॉपुलर हिंदी गाने हैं जो जैज़ स्टाइल से मैंने अरेंज करके उसमें प्रेजेंट किए हैं, और उसका अरेंजमेंट भी मेरा ही है। अरेंजमेंट मतलब जो पीछे सब म्यूजिक होता है। एंड यूनिक बात है कि उसका अरेंजमेंट पूरा वोकल है, मतलब उसमें इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं, उसे हम एक्पेला कहते हैं। इट्स अ वेरी डिफरेंट स्टाइल। तो मैंने मुंह से उसमें जो ये आवाज़ें निकलती हैं, सारे instruments की। हार्मोनीज ये सब अच्छा, वो आपने मैंने किए हैं? yes, तो yes. आपके YouTube का नाम ही बता दो तो फिर अवंती आप सुन पटेल। सकते हैं। अवंती पटेल, वेरी So नाइस। you'll find तो me फिर there. हम वहाँ तो बिल्कुल सुनेंगे आपको। अच्छा, और कोई महत्वाकांक्षा है? तो आपने क्या अभी करें? मेंशन किया कि ओरिजिनल म्यूजिक। हाँ, ओरिजिनल ओजी। तो ओरिजिनल म्यूजिक इज आल्सो आई वुड से समथिंग आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लोर एंड आई एम होपिंग टू एक्सप्लोर मोर एंड मोर। उसमें मैंने खुद लिखे हुए हैं, कंपोज किए हुए और ऑफ कोर्स गाए हुए भी हैं। तो वो एक अलग साउंड और अलग स्टाइल है जो मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ, वो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे। एंड ऑफ कोर्स जो अपने अभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक, जियो गाना, ये सारे प्लेटफॉर्म। वो सैया बिना ये मैंने खुद लिखा हुआ है, कंपोज किया। कोई भी है ना, कोई वो भी आपका लिखा yes, हुआ है? मेरा लिखा हुआ है। तो वो हम सुन सकेंगे वहाँ पे? बिल्कुल, ओके, वीडियो के साथ। बिल्कुल ठीक है, तो वो ज़रूर करेंगे। तो और बस आपकी कोई ख्वाहिश है ज़िंदगी में क्या करने की, क्या कोई महत्वाकांक्षा जिसे हम कहते हैं? What do you want to do in future? ये तो कर ही रही हो और हम चाहते हैं कि ये तो जर्नी आपकी अच्छी ही रहे, बट what is in your mind? What do you want to do on big scale or something like that? So I think I am already on that path. ये ही करना है मुझे, प्रोफेशनली म्यूजिक परस्यू करना है इन द डिफरेंट वेज दैट कम टू मी। मतलब अभी आपने ऑलरेडी हमने बात की है कि परफॉर्मेंस एक एस्पेक्ट हुआ, क्रिएशन एक एस्पेक्ट हुआ। तो ये सारे जो पहलू हैं उसे जैसे जैसे फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज आती रहेगी और मैं जो निभा पाऊँ उस हिसाब से मुझे वो एक्सप्लोर करते हैं। ओके, ठीक है। तो अवंती, ये तो बहुत अच्छी बातें हो गई है। हम एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड जैसा करते हैं। सो उसमें मुझे जो भी याद आएगा वो मैं आपको पूछ लूंगी। Oh my God, I have to be ready now. Yeah, you better. Let's. जैसे हमने पहले ही बोला, गुजराती और मराठी, आप दोनों लैंग्वेज और दोनों कल्चर से बिल्कुल परिचित हो, तो कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा अच्छी लगती है और कौन सा फूड अच्छा लगता है? मराठी लैंग्वेज बट गुजराती फूड। या ऑब्वियसली। पर कोई स्पेशल फूड गुजराती? एक्चुअली मेरी जो दादी थी, बा थी, शी यूज्ड टू मेक अमेजिंग ऊंधियो। ओह वाओ। एंड शी यूज्ड टू मेक अमेजिंग ढोकला। अच्छा, सो दीज आर माय चाइल्डहुड फेवरेट्स। ओके, ठीक है। आपके फेवरेट मेल फीमेल सिंगर? ये फिर से मुश्किल सवाल पूछा है। अच्छा, थोड़ा वो उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, बॉलीवुड के सिर्फ, नॉट ऑल ओवर। मेल में देखें तो बॉलीवुड में आई वुड से ऑफ कोर्स अरिजीत सिंह इज अ वेरी वेरी आई वुड से प्रोलिफिक सिंगर एंड आई आल्सो रियली एंजॉय पैपॉन्स सिंगिंग। एंड फीमेल में तो आई थिंक एवरग्रीन फैन ऑफ सुनिधि चौहान। Okay, she is just too she is good. also such good a and very talented, versatile. versatile. और उनके लाइव शोज तो बहुत ही धमाकेदार है। वेरी ट्रू। ओके, एक सवाल मुझे वो भी आता है माइंड में, शायद अपना जो इंटरव्यू है वो फरवरी 2nd वीक के आसपास हम रिलीज करेंगे। सो वैलेंटाइन डे आता है। Yes, yes. What is the definition of love Oh according my to you? God. I think love is acceptance. Yeah. अगर चाहत है तो स्वीकृति भी जरूरी है। Exactly. वेरी नाइस। ओके, अच्छा, इफ यू हैव अ फ्री इवनिंग, अगर एक शाम आपको मिल जाती है तो आप क्या करना पसंद करोगी? मुझे नेचर बहुत पसंद है। ओके, तो अगर
फ्री इवनिंग मिले तो मैं सनसेट देखना चाहूँगी. लाइक टू गो टू अ नाइस ब्यूटीफुल नेचर स्पॉट. मे बी हम मुंबई में हैं तो बीच. या बीच रेस्टोरेंट में जाके नहीं नहीं, जस्ट ऐसे नेचर. मुझे nature लोग के नहीं पास। लोग नहीं चाहिए, दैट्स गुड. नेचर के, हाँ, दरिया के सामने बैठ कर, करेक्ट करेक्ट. वो भी बहुत ही एक सुंदर दृश्य होता है. Absolutely. उनके कलर्स कितने होते हैं बहुत, शाम को. बहुत इफ यू गो टू नरीमन पॉइंट और Yeah. somewhere near the sea, sky is very different Very in the evening. So I know you must be enjoying Yeah. that. Okay. आपकी और हॉबीज क्या है अपार्ट फ्रॉम दिस सिंगिंग? तो हॉबीज तो मैं बचपन में ना बिकॉज ऑफ माई मदर हम लोग काफ़ी आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में एंगेज होते थे. तो हम पेंटिंग करते थे. इट्स नॉट दैट आई एम एन आर्टिस्ट और एनीथिंग, बट इट गिव्स मी लॉट ऑफ जॉय. Okay. सो आर्ट, फाइन आर्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स. एंड लाइक आई सेड, नेचर बहुत पसंद है. तो Yeah. मुझे आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत पसंद है. Okay. मैंने स्कूबा डाइविंग किया हुआ है, सर्फिंग किया हुआ है. Okay. अब मैं फेब में स्कीइंग करने जा रही हूँ. अरे वाह, तो वेरी नाइस. आउटडोर एक्टिविटीज बहुत अच्छी लगती है. Who is your inspiration? अगेन वन पर्सन हार्ड टू से, Hmm. बट डेफिनेटली माय गुरु अश्विनी ताई, because so much to learn from her. Yes. And I would also say I had a teacher who unfortunately passed away just this year and unexpectedly. He was a college professor and he taught us sociology and anthropology. Oh. His name was Father Arun, Okay. and I think he was the first teacher in my life who Achha. really inspired me. Okay. So I would say he is also there. Okay, great. अगर सिंगर नहीं होती तो Hmm. क्या होती आप? ऐसा कुछ सोच सकती हो? हाँ, डॉक्टर. डॉक्टर. ओके. तो डॉक्टर बनने की ख्वाहिश थी? हाँ, आई थिंक मुझे पसंद था पहले से. और बचपन में म्यूजिक आ गया तो मेरे दोनों पेरेंट्स डॉक्टर हैं, तो उन्होंने Okay. कभी भी पुश नहीं किया कि आप डॉक्टर बनो. लेकिन वो हमारे घर में ही है. तो आई थिंक शायद दैट हो वुड सकता हैव था, बीन I द know. नेक्स्ट स्टेप. मे हो सकता था, क्योंकि घर में होता है तो नॉर्मली हाँ. बच्चे उसमें ही जाते हैं. नहीं, और मुझे इंटरेस्ट भी था, ऐसे हाँ. नहीं कि. लेकिन हमें इतनी अच्छी सिंगर नहीं मिलती, तो अच्छा हुआ आप नहीं गई. थैंक्स टू माय पेरेंट्स कि Yeah. उन्होंने हमें इतनी फ्रीडम दी जो आप करना चाहो आप. आपके पिताजी को भी म्यूजिक का शौक है? शौक है लेकिन गा नहीं जान सकते. सकते. कोई बात नहीं. लेकिन एक बात मुझे बताओ, ये दिस इज द लास्ट थिंग. गुजराती यू कैन स्पीक अ बिट. यस. समझ तो बिल्कुल सकती हो. हाँ. आपने गुजराती गाने भी सीखे होंगे या हाँ. सुने होंगे. हाँ. तो आपका कोई फेवरेट गाना है गुजराती? एक्चुअली मैंने गुजराती में एक फिल्म के लिए प्लेबैक भी दिया हुआ है. ओके. एंड वो फिल्म मुझे लगता है 2015 या 16 में रिलीज हुई थी. नाम याद है? पुतु तु 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 आवी रमतनी ऋतु. ओके. और उसमें मैंने वेडिंग सीन के लिए अचको मचको गाया था. ओह. सो दैट इज अ ग्रेट मेमोरी फॉर मी. ओके. थोड़ा सा बोल सकती हो, नहीं तो मैं गा लूंगी. वो ही आप ना? गा लीजिए. अचको मचको कारेली. करेक्ट. उसका फर्स्ट लाइन क्या था? किया ते कामना गोरी राज अचको मचको कारेली. ठीक है. अब हम आपसे गुजराती गाना गवाएंगे कभी. नेक्स्ट इंटरव्यू गुजराती में बिल्कुल. प्रिपेयर करके आऊंगी. हाँ, जरूर जरूर. सो थैंक यू सो मच अवंती, Thank you, बहुत अच्छा नंदिनी लगा. जी. और आप भी हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहे स्वर गुर्जरी चैनल के लिए, या तो वॉट एवर यू फील लाइक टू से. I would like to say that this is so nice कि नंदिनी मैम has actually sat with me and chatted so beautifully. ऐसे conversations artists के साथ बहुत कम होते हैं, तो आप इनके चैनल में बाकी भी आर्टिस्ट के वीडियोस हैं वो ज़रूर देखिएगा. और हमारे जैसे टैलेंट को आप सपोर्ट कर रही है. आई रियली एम ग्रेटफुल एंड थैंकफुल. थैंक यू सो मच. हमें भी बहुत अच्छा लगा, हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगेगा, और उनकी यूट्यूब चैनल ज़रूर देखना. Yes. ओके, थैंक यू सो मच. Thank you.